In this class, we are going to discuss about reading comprehension. See, this is class 4 on reading comprehension. If you haven't watched class 1, 2, 3, please go and watch those classes first and then watch this class. See, this class is on implication or imply and corollary based questions. Okay, so first briefly understand what's the meaning of these terms and how these term based questions can be asked in CSAT paper. Then we will solve PYQs based on these concepts. So first thing is, let's deal with implication or imply. ठीक है, implication or imply. See what it means. Like, it is like imply means something which is not explicitly stated. ठीक है, something which is not explicitly stated but it indicates truth using some hints given in the passage. ठीक है, see, these things are not explicitly stated. Like, you need to find out what does passage implies. ठीक है, but that indicates truth based on some hints given in the passage. Passage में कुछ hints होता है. ठीक है, based on that you need to then to imply. ठीक है, to imply is to hint at a हिडन मैसेज. कुछ छुपा हुआ है उसको इंप्लाई करना. दैट इजंट पार्ट ऑफ द एक्चुअल मैसेज. That isn't part of the actual message. Imply is to hint at a hidden message that isn't part of actual message. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं, इम्प्लाई का अच्छे से समझ में आएगा. यू कैन इम्प्लाई दैट यू लाइक समवन by sending them flowers. ठीक है, so in passage they talk about like a person has sent them flowers, और ऑप्शन में देगा, ठीक है, the person likes him or her, ऐसा देगा. so sending the flowers implies as you like someone, then only you send flowers. You don't send flowers to enemies. ठीक है, तो ये imply का मतलब. so it is like hint. see, you like someone, sending flowers is like hint. based on the hint you imply that you like someone. ठीक है, तो ऐसा जो भी आता है, so it is not given in the passage, not stated in the passage. you need to imply from facts given in the passage. ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोरोलरी. अब देखो कोरोलरी क्या होता है. कोरोलरी इज ए डायरेक्ट और ए नेचुरल consequence of something. ठीक है, corollary is a direct or natural consequence of something. ठीक है, और
it is an idea formed from something that is already proven. ठीक है, सी corollary is an idea formed from something that is already proven. Like say A is proven, ठीक है, and B is similar to A. Like say like two persons are there, ठीक है, they both are doing same business and they are earning same amount of profits and same lifestyle. So if we say A is rich, then B is also rich, ठीक है, this is like corollary, ठीक है, and natural consequence of something. like A भी same कर रहा है, B भी same कर रहा है, so natural consequence, ठीक है. then it is a fact that is direct result or consequence of another fact. भाई देखो इधर we got few facts about A and facts about B. So based on those direct facts we are getting into another fact, ठीक है, वो होता है corollary. So we will solve questions, then you will get more idea with respect to imply and corollary. See, both are very important every year. It's like some 4 to 5 questions are asked based on these two things in reading comprehension. So let's go and do PYQs. See, this is a question asked in UPSC 2021 CSAT paper, ठीक है. So question is, which of the following form practices can be compatible with agroecology as implied by the passage. अब देखो implied मतलब क्या होता है, through hints given in the passage you need to come, ठीक है. So देखो cover crops etc etc दिया हुआ है. So pause the video, you solve it, then watch for the explanation. तो उससे आपको पता चलेगा कि where you are doing mistakes, ठीक है, what things you need to correct while attempting reading comprehension. So ठीक है, at the heart of agroecology is the idea that agroecosystems should mimic the biodiversity levels and functioning of, ठीक है, biodiversity levels and functioning of natural ecosystems, ठीक है. जैसे agroecology क्या है, mimic natural ecosystems. Such agricultural mimics like their natural models can be productive, pest resistant, nutrient conserving and resilient to shocks and stresses. In ecosystems there is no waste, nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, that is returning all nutrients that come out of soil back to the soil, such as those applied in farm manure, ठीक है. It also harness natural process to control pests, build soil fertility through intercropping, ठीक है. Agroecological practices include integrating trees with livestock and crops, ठीक है. अब देखो which of the above agricultural practices can be compatible with agroecology. भाई देखो agroecology के बारे में बता दिया, ठीक है. which can be implied. here implied is a important word here. Implied means hints about these things. देखो अब कवर क्रॉपिंग, ठीक है, देन फर्टिगेशन. देखो फर्टिगेशन का कभी मेंशन किया गया. फर्टिगेशन इज व्हाट, फर्टिलाइजर यूसेज प्लस इरिगेशन, ठीक है. अब भाई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो डज इट मिमिक बायोडाइवर्सिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स? नो, सो इट इज नॉट इम्प्लाइड, ठीक है. देखो anywhere such agriculture mimics like their natural models can be productive, pest resistant, nutrient conserving, ठीक है, resilient to shocks and stresses. In ecosystem there is no waste,
nutrients are recycled indefinitely. Agroecology aims at closing nutrient loops, returning all nutrients that come from soil to the soil. तो fertilizers तो यूसेज का बात ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इट इज ऑपोजिट ऑफ अगेंस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो काटो, 2 इज क्लियरली एलिमिनेटेड. ठीक है. देन हाइड्रोफोनिक्स. देखो हाइड्रोफोनिक्स इज अगेन नॉट मेंशनिंग. हाइड्रोफोनिक्स इज व्हाट? एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ वाटर. ठीक है. देन देखो मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग इज व्हाट? लाइक यू आर डूइंग एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. प्लस फार्मिंग और सम एक्टिविटीज. देखो हियर इट इज मेंशन्ड लाइक इंटरक्रॉपिंग, integrating trees with livestock. So that is an mixed cropping. So 4 is there. So 4 is in both the options. और इसमें नहीं है तो इसको और काटेंगे. ठीक है. देन आता है पॉलीकल्चर. पॉलीकल्चर इज लाइक कल्टिवेटिंग मेनी थिंग्स. ठीक है. कल्टिवेटिंग मेनी थिंग्स. देखो इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकल्चर. ठीक है. सो देन वर्टिकल फार्मिंग. सी अगेन वर्टिकल फार्मिंग is unnatural thing. ठीक है. वर्टिकल फार्मिंग इज लाइक व्हाट? इन डिफरेंट स्टेयर्स यू विल डू कल्टिवेट डिफरेंट प्लांट्स. तो ये फर्टिलाइजर हाई टेक्नोलॉजी वाला. सो वर्टिकल फार्मिंग कट, तो 6 कट गया. सो 1, 4 एंड 5. सो 1 इनफैक्ट कवर क्रॉप्स भी अगर हमें नहीं पता है तो 4 एंड 5 आर कंपल्सरी एंड 6 इज स्ट्राइक डाउन. हाइड्रोफोनिक्स भी स्ट्राइक डाउन. हाइड्रोफोनिक्स इज लाइक यूज ऑफ एक्सटर्नल वाटर एंड विदाउट सॉइल ग्रो करना. सी दिस इज अगेन अननेचुरल थिंग. ठीक है. हाई टेक्नोलॉजी. देखो इधर दिया हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम्स को वो करता है. सो दिस थिंग. ठीक है. सो इम्प्लाइड फ्रॉम द पैसेज लाइक इंटरक्रॉपिंग से हमें इम्प्लाइड हो गया बाई पॉलीकल्चर है. ठीक है. लाइव स्टॉक एंड क्रॉप से इम्प्लाइड हो गया बाई मिक्स्ड फार्मिंग है. ठीक है. सो इट इज लाइक एक्सप्लिसिटली नॉट स्टेटेड बट hints are given. So based on those hints you need to imply things. तो इसीलिए implied question में important होता है hints ढूंढना. And in implied questions you need to know the concepts. like GS का knowledge इधर help होगा. It's not like you are using GS knowledge but ये इंटरक्रॉपिंग क्या है, लाइफ स्टॉक क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग एक्सेट्रा, वो इंप्लाई करने में इट विल हेल्प. सो यूज योर GS नॉलेज इन सॉल्विंग implied questions to imply derive those implications. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अगेन UPSC 2021 पेपर. ठीक है. Which of the following statements best reflect rational, plausible and practical implications? देखो कोई भी you need to focus on the terms we discussed in the first class. That is like corollary, implication, inference, assumption, conclusion, etc. तो इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन को एड्रेस करना है. ठीक है. सो नाउ पॉइंट्स दिया हुआ है. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ. सी pause the video, attempt it, then only watch for the explanation. अब मान ले सही किया गलत किया, from then you will learn your from mistakes. तो let's see. In the immediate future we will see increasing commodification of many new technologies. Artificial intelligence, robotics, manufacturing, custom made biological, pharmaceutical products leader. ठीक है. many commodification होगा. ठीक है. This will pose conundrums. The moral question of how driverless car decide between hitting jaywalker and swerving and damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life, and complex. ठीक है भाई. आंसर सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. At which angle should the car swerve? Just enough to save jaywalker or enough? ठीक है. Then driverless car in Dublin, who would take the decision? The Irish government or Cod's original coder or software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing human life, how will it affect insurance and investment decisions including transnational ones? ठीक है. अब देखो
पढ़ते। बेसिकली पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट भाई जैसे कमोडिफिकेशन बढ़ेगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने वाला है। ठीक है, आंसर सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस एक्सप्लेन किया है। ठीक है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। दिस इज लाइक वेग थिंग, राइट, वेरी वेग थिंग। ठीक है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेस्ट इंटरेस्ट है नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इट इज मेजरली अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी का with respect to interconnectedness. ठीक है, so this point will be cut down because it's like extreme statement, not in best interest of any country. It is not talking about best interest. ठीक है, then आता है देखो, modern technologies are increasingly blurring the economic borders. Yes, देखो where it is given, देखो economic borders देखो, how does it affect insurance and investment decisions. ठीक है, modern technologies are increasingly blurring economic borders. देखो अब आयरिश गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद एस blurring द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, सो देखो इस वन कटने से ही पूरा क्वेश्चन हो रहा है, बट वी विल सी ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन 2 इज गिवन। ठीक है, देन इनोवेशन एंड कैपिटल हैव impinged on the domain of state. yes, ये कहाँ से imply हो रहा है? ठीक है, this one is implying from Irish government, the Irish government or the car owners, and if different national jurisdictions have different fine prioritizing life, तो इधर से imply हो रहा है innovation and capital have impinged on domain of state. ये तो by domain of state है, so 3 is करेक्ट। ठीक है, अब देखो 3 करेक्ट नहीं है तो ये कट जाएगा। ठीक है, देन पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स। देखो सप्लाई चेन्स का कभी मेंशन किया है क्या पैराग्राफ में? दे हैवंट टॉक्ड अबाउट सप्लाई चेन्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री। पब्लिक पॉलिसी एंड एवरी कंट्री, देयर इज नो मेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन द पैसेज, सो ये कट जाएगा। और एवरी कंट्री का and supply chains nothing is talked, so it has to be eliminated first. तो देखो अब फर्स्ट से कट गया सारे ऑप्शंस, देन फोर्थ से कट गया, सो बचा हुआ सी। एंड फिफ्थ का भी देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ का देखते हैं भाई, जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकॉन्साइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज। देखो जियोपॉलिटिक्स, देखो अब जियोपॉलिटिक्स कहाँ मेंशन किया? देखो आयरिश गवर्नमेंट। ठीक है, देन मोरल क्वेश्चन विल डिसाइड हिटिंग द क्वार। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जे वॉकर। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर कंपनीज, नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अफेक्ट ट्रांसनेशनल वंस, सबको अफेक्ट हो रहा है भाई जब जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है, विल हैव टू कंसेल मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज। देखो अनसर्टेनिटीज तो बात किया, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, बोथ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, इट मीन्स भाई बहुत एम्बिग्विटीज है, सो 5 इज कैन बी इम्प्लाइड, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, समझ रहे हो हाउ यू नीड टू इम्प्लाई फ्रॉम दिस थिंग्स। ठीक है, सो डोंट गो इन टू एक्सट्रीम थिंग्स लाइक जैसे ग्लोबलाइजेशन नॉट बेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, टू मच ग्लोबलाइजेशन। पैराग्राफ इज नॉट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट इज अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। देखो अब देखो इधर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक बॉर्डर्स दोनों आ गया, सो इट विल कम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2021 पेपर। ठीक है, यूपीएससी 2021। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड। ठीक है, तो इम्प्लाई, इम्प्लाइड, इम्प्लीकेशन। ठीक है, सो क्या इम्प्लाई करता है? सो लेट्स रीड द पैसेज एंड ऑप्शंस। देखो रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस ऑफ इंडियन बैंक्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड should help bring non-perform assets
situation under some control. Despite the slow pace of resolutions by the National Company Law Tribunal, the code can help in cleaning up bank books in future credit cycle. ठीक है. The recapitalization of public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. ठीक है. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of solution, as they by themselves can do very little to rein in reckless lending that has pushed the Indian banking system into current sorry state. Unless there are systematic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycle will continue to distress. देखो क्वेश्चन क्या है भाई, बैंक रिजोल्यूशन कोड है, ठीक है, इट इज हेल्पिंग, बट बैड डेट रिजोल्यूशन रिकैपिटलाइजेशन ओनली पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. भाई रियल प्रॉब्लम है कि बैंक्स लेंडिंग, रिकलेस लेंडिंग, ये एक क्लियर प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड उसके लिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट इम्प्लाइड फ्रॉम दिस. लेंडिंग बाय द बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, देर इज सम एलिमेंट बिकॉज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स आर नीडेड, बट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंशन नहीं किया है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मेंशन किया. सो लेट्स स्ट्राइक इट डाउन हाफ हार्टेडली. लेट्स सी अदर ऑप्शंस. इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट लो सो एज टू इंड्यूस बैंक्स टू लेंड मोर, प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाई बूस्ट इकोनॉमिक. है भाई, एक देखो पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट रिकलेस लेंडिंग दैट पुश द इंडियन बैंक्स. सो इट इज नॉट अबाउट keeping interest rate low and induce banks to lend more. No, in fact, it is opposite of what is given in the passage. Passage is talking about you need to stop reckless lending. ठीक है, so it cannot be implied. Then merger of many banks into few large banks alone is long-term solution. भाई merger of banks hasn't been talked. ठीक है, so it is like outrightly reject करना है इसको, क्योंकि it is out of the scope. Merger of banks has nowhere been talked, and few large banks long-term resolution. Then Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loan problem. देखो systematic reforms, bad debt resolution, recapitalization, ठीक है, this seems more implied. Indian banking system requires structural as a long-term solution for bad loan problems. देखो we are talking about bad loans only, ठीक है, like bad debt resolution, bad loans, only solution can do little. Reckless lending has pushed Indian bank is sorry state of affairs. ठीक है, sustainable lending, future credit cycles will stress the banking system. So option D is the answer. See, this point is again incorrect because lending of banks should be closely monitored and regulated. First thing is देखो systematic reforms के बात किया, मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड पे इतना ज़्यादा बात नहीं है, एंड दैट टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा बात नहीं है. इट इज़ लाइक बैंकिंग सिस्टम भाई, हो सकता है आरबीआई रेगुलेट कर रही हो या बैंक्स इटसेल्फ रेगुलेट कर रहे हो. सो ऑप्शन डी इज द रेशनल, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 का पेपर. दिस इज 2020 CSAT पेपर का क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज. देखो छोटा सा पैसेज है, ठीक है. सी दिस आर टू बी द पैसेजेस यू मस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट. छोटा पैसेज है, यू जस्ट टेक्स 20 seconds टू रीड एंड 4 सिंपल पैराग्राफ्स गिवन है. सो दीज आर द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू टारगेट. जैसे पैराग्राफ्स कर रहे हो तो दिस मस्ट बी द फर्स्ट पैराग्राफ्स यू मस्ट अटेम्प्ट. ठीक है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो हाउ यू नीड टू गो अबाउट पैराग्राफ्स एंड ऑल. ठीक है, सो इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो लेबर हैज़ बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर. ठीक है भाई, बट ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच आर नॉट मार्केटेडली बेटर जॉब्स. भाई एग्रीकल्चर छोड़ के उधर जा रहा है. सर्विसेज वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री नीड्स. इंडिया विल हैव
24 million or so jobs over a decade, the new sector e-commerce can at best close only half of the jobs gap. ठीक है, only those sectors that drive domestic demand such as health and education can comfortably fill the other half. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इंडिया विल नीड और जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड, द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ द जॉब्स गैप. भाई ई कॉमर्स क्या क्या है, सिर्फ हाफ ही कर सकता है. बट ये देखो ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ. ठीक है, एजुकेशन. सो लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर. देखो कहाँ है, सी दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 1 ऑल्सो. देखो माइग्रेशन पे बात ही नहीं किया है, दैट टू रूरल अर्बन माइग्रेशन. सो सिंपली out of scope of the passage you will cut it down. Then working conditions in construction and unregistered manufacturing needs to be improved. देखो but only the construction and which are not markedly better jobs. देखो क्वेश्चन इज, देखो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, नीड्स टू बी इम्प्रूव का बात ही नहीं किया है. दिस इज लाइक but only going to construction and registered manufacturing that are markedly better, not markedly better jobs. भाई better jobs नहीं है. and working conditions का फिर again बात नहीं किया है. ठीक है, and देखो needs to be improved का बात नहीं किया. author is not suggesting, author is just saying कि भाई इधर से उधर जा रहा है, उधर इतना अच्छा नहीं है. and working conditions का भी बात नहीं किया, so it would be cut down. service sector has been reducing the problem of unemployment. देखो दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज गिवन. भाई सर्विस सेक्टर इज नॉट एबल टू, देख इधर दिया, देख सर्विसेस वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग एडिशनल प्रॉब्लम्स, एडिशनल जॉब्स इंडिया नीड्स. सो हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नो, इट कैन नॉट बी सेड लाइक इट इज नॉट रिड्यूसिंग यार, इट इज नॉट एबल टू एड्रेस. देन इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन. देखो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, इंक्रीज्ड हेल्थ एजुकेशन, यही तो है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग. सो दिस वुड बी द आंसर. अगेन सो इन इम्प्लाइड क्वेश्चंस, सी नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन, ये हिंट दिया है. ठीक है, एंड ओनली इधर भाई यही कर सकता है जॉब को कंफर्टेबली हाफ. हिंट से हमें इंप्लाई करना है इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग. सोशल सेक्टर मेंशन नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दैट दे मेंशन हेल्थ एंड एजुकेशन. सो अगेन जीएस का नॉलेज से इंप्लाई करना है जब इंप्लाई का आएगा. ठीक है, गॉट इट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी 2020 पेपर CSAT. सो पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड अटेम्प्ट इट. सो क्वेश्चन इज मोस्ट रेशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस. अगेन इम्प्लाई, इम्प्लीकेशंस, इम्प्लाइड सेम चीज़ है. ठीक है, लेट्स सी द पैराग्राफ. मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस द हाईली स्क्यूड सीजनल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून फ्लोस which occur in a 4-month period from June to September annually have been lost. By many opportunities to harness has been lost. Since these few months account for most of the rainfall and consequent freshwater availability, the need for holding rainwater in reservoirs for subsequently releasing it for use over the year is a necessity nobody can afford to overlook. Climate change will continue to affect weather conditions and create water shortages and excesses. While millions suffer from droughts and floods, water in the country's many rivers flow unutilized and are discharged into the sea every year. ठीक है, so from the above passage which of the most rational and practical implications for India. ठीक है, इंडिया के लिए देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई रेन वाटर है वो अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट कर रहा है, फ्यू मंथ्स में वगैरह हो रहा है. द नीड फॉर holding rainwater in reservoirs for subsequently increasing is necessary, nobody can afford to overlook. ठीक है, climate change will continue. ठीक है, then water shortage excess
ठीक है, रिवर वाटर फ्लो कर रहा है. दीज थिंग्स आर द मेन थिंग्स. देन लेट्स सी. देखो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन. देखो भाई, मेनी रिवर्स फ्लो अनयूटिलाइज्ड एंड डिस्चार्ज्ड एंड होल्डिंग वाटर इन रिजर्वायर्स. ये कब सब होगा? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन. भाई ये सब इंप्लाई कर रहा है, ठीक है भाई. वी आर लूजिंग रेन वाटर, होल्डिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स ओवर ईयर्स is nobody can afford to overlook. Afford to overlook means it is like implying to take action. ठीक है, to take action. Interlinking of rivers, भाई करो, ठीक है. Then a network of dams and canals should be built across the country for proper distribution of water. देखो reservoirs, ठीक है, रिवर्स भी फ्लो कर रहा है भाई. प्रॉपर डैम्स एंड कैनाल्स करना है. अगेन ए लॉजिकल थिंग. सो 1 and 2 कहाँ है? 1 and 2 इधर है. लेट्स सी फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो. फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स. भाई नो वेयर इट हैज टॉक्ड अबाउट फार्मर्स, ठीक है, सो कटेगा. इट इज दो ऑप्शंस में फार्मर्स है. सी लुक एट इट. इन 2 options there is 3. Usage of water for agriculture should be regulated by law. भाई there is no mention of law, no mention of regulation of agriculture usage of water, ठीक है. So 4 will be cut down. So 4 is in this one, these 2 options will be extra cut down. Then distribution of river water among regions should be regulated by union government. भाई nowhere there is talk about union government. So again 5. So ये would be the answer. So देख, जो भी चीज़ है उनके बारे में बात ही नहीं किया, ठीक है. इट्स लाइक नो वेयर टॉक्ड अबाउट लॉ फॉर रेगुलेटिंग एंड यूनियन गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. नो वेयर देर इज यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है. देन फार्मर्स शुड बी लोन्स, नो वेयर इट इज मैंशनड. सो यू नीड टू कट डाउन दैम. एंड इम्प्लाइड राइट इंटरलिंकिंग वाटर, ठीक है, डैम्स एंड कैनाल्स. अगेन सेम थिंग. देखो हिंट्स दिया हुआ है. सो इंप्लाइड क्वेश्चंस में हिंट्स मिलता है, ठीक है. नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ठीक है, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बट हिंट्स आर गिवन. फ्रॉम देम यू नीड टू इंप्लाई, ठीक है. दैट इज द क्रक्स ऑफ implication based questions. समझ गया. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ए क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2020 का है, ठीक है. विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज, मोस्ट रेशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस, ठीक है. देखो अगेन छोटा सा पैसेज दिया हुआ है. सो रीड द पैसेज. India is at once among the fastest growing global economies and home to the largest number of malnourished children in the world. There are regions where malnutrition is not the exception but the norm. ठीक है, fastest growing global economies है and home to largest malnourished children in the world. And across the country, malnutrition is the cause of death for roughly 500,000 who die before 5 years of birth. Even those children who survive suffer permanently from the damage that has already been done to their bodies and minds, not getting enough right foods and nutrients. Around 44 million children under age are stunted. It makes it harder for them to learn at school and subsequently earn a living, as their lifetime earnings potential is almost a quarter less than that of their healthy peers. By basically it's on malnutrition in India डिस्पाइट फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है. इन फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी से, ठीक है. एंड उसकी वजह से नॉट जस्ट डेथ से बट फ्यूचर लर्निंग्स में भी दिक्कतें हो रही है. सो इम्प्लीकेशंस फ्रॉम दिस, ठीक है. टू दो, सो इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अब देखो, मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. इज देयर any mention of union government in this passage? Like, and
इज देयर एनी मेंशन ऑफ पीडीएस, ठीक है, और मान ले पीडीएस तो छोड़ दिया, इज देयर एनी मेंशन लाइक बाई यूनियन गवर्नमेंट मॉनिटर करना है, सो कट इट, सो ये कट गया, ये कट गया, सो जो मतलब लाइक सम नो वेयर इट इज टॉक्ड अबाउट, लाइक नॉट इवन अबाउट एनी गवर्नमेंट, सो उसको काटना है, ठीक है। देन आता है गर्ल शुड बी एंकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। सी समवेयर इट इज रिलेटेड लाइक टू माल न्यूट्रिशन, राइट, ठीक है। सो लेट्स लीव इट हियर। देन मदर शुड बी एंकरेज टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सी अगेन देखो, रीजन्स वेयर माल न्यूट्रिशन कॉज डेथ रफली बिफोर 5th बर्थडे एवरी ईयर, ठीक है भाई। सो बिफोर 5th बर्थडे मेनी आर permanently from damage, rights food and nutrition. So breastfeeding immediately after birth would play an important role in malnutrition, ठीक है, वो है। then proper supply of drinking water and poor sanitation facilities to all should be ensured, भाई ऐसा ensure करेंगे तो थोड़ा malnutrition वगैरह कम होगा, ठीक है। देन अथॉरिटी शुड एंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, देखो राइट फूड एंड न्यूट्रिशन, सी अगेन वैक्सीनेशन एंड ऑल आर देयर, ठीक है। सो सी इन दिस क्वेश्चन इवन आई हैव ए डाउट विथ रेस्पेक्ट टू आंसर्स, लाइक सी हियर it is like vaccinations be prescribed is like far fetching, should ensure that vaccination be prescribed and like drinking water facilities, proper sanitation, these two are fir bhi okay, but again here देखो girl should be encouraged to delay marriage at first pregnancy, ठीक है, but UPSC has given this as answer, so even I have reservations with this question, so I am saying it plainly. So देखो again I am telling you, like in reading comprehension out of 27 questions, देखो आंसर कीज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वेरी फॉर 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। सो जस्ट लाइक इफ यू आर गेटिंग लाइक 20 क्वेश्चंस राइट और 21 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ दिस 27 क्वेश्चंस, देन इट इज ए वेरी गुड अटेम्प्ट, ठीक है। सो मेक श्योर कि अटेम्प्ट करो, आई एम नॉट सेइंग लीव देम, आई एम सेइंग अटेम्प्ट ऑल द 27 क्वेश्चंस, बट व्हेन कीज आर आउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी, ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस का वेरी होगा, इट इज बाउंड टू हैपन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नो मैटर व्हाट। सो ऐसा लेके सो यू ट्राई टू गेट 20 to 21 क्वेश्चंस राइट फ्रॉम एनी आंसर की। सो ये तभी हो सकता है कि व्हेन यू अटेम्प्ट ऑल द 27 क्वेश्चंस, सो अटेम्प्ट ऑल द 27 क्वेश्चंस, ठीक है, गेट 20 to 21 क्वेश्चंस राइट, दैट हैज टू बी द एम। सो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 20 to 21 क्वेश्चंस हो गया, देन मैथ्स में यू नीड टू एम फॉर अटेम्प्टिंग 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और आउट ऑफ 30 यू नीड टू एम फॉर 20 to 25 क्वेश्चंस ठीक होना है एट मैक्स। देखो इन मैथ्स तो 20 क्वेश्चंस ठीक होना ही होना है, ठीक है। मैथ्स जब मैथ्स 20 का क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है, देन नो वन कैन स्टॉप यू। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब किया तो बाकी कितने ठीक होना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इफ यू वॉच दीज क्लासेस एंड प्रैक्टिस वेल, देखो 16-17 तो ऐसा ही हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। सो द एम इज 20 तक जाना है, ठीक है, मैथ्स में 20, एंड मैथ्स में वंस यू डू 30 क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस ठीक होना बनता है। सो एम फॉर लाइक 20 + 20 क्वेश्चंस ठीक होना है, ठीक है, और मैथ्स में 25 भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। यू वॉच ऑल माई क्लासेस एंड ऑल, सो 45 क्वेश्चंस ठीक हो गया, ठीक है, नो बडी कैन स्टॉप यू, लाइक 45 क्वेश्चंस ठीक होते हुए भाई 110+ आ जाएगा मार्क्स, एंड 40 क्वेश्चंस ठीक होते हुए यू वुड बी लाइक 100 मार्क्स मार्जिन में होगा, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी द एम। सो नेक्स्ट थिंग इज, देखो अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो लाइक इससे कोरोलरी से लाइक मुश्किल से एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आरास,
like in few years just one question, 1 or 2 questions. So corollary relatively थोड़ा easy होता है. So मैंने क्या बोला, corollary is natural consequence. ठीक है, natural consequence of something. ठीक है, an idea derived from something. So corollary है. So let's see. देखो, ये देखो, this is question from UPSC 2021. ठीक है, देखो कितना शॉर्ट पैसेज है. दिस हैज टू बी द फर्स्ट क्वेश्चंस. ऐसा क्वेश्चंस 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, सो वाइल डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिस हैज टू बी योर फर्स्ट प्रियोरिटी. ठीक है, सो छोटा सा 4 लाइन का पैसेज पढ़ लिया, तुरंत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये. दीज आर इजी क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, सो जो फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड दीज 10 to 12 क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड. सब अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी. इन इंडिया सो कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सो इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी is to enhance the economic welfare of people, and any one wing of such macro policy, monetary or physical, cannot independently work without active support of another. ठीक है भाई, monetary policy enhances economic welfare of people, and one wing of monetary policy, macroeconomics, that is monetary and physical. देखो जीएस का नॉलेज आपको पता है भाई, monetary is RBI. ठीक है, फिजिकल इज गवर्नमेंट. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, सो देन लेट्स सी द थिंग. द सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट. देखो ये भैया भाई, एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी मॉनेटरी कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर. देखो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, दोनों का ही बात हो रही है. सो कोरोलरी you can make it. So let's keep it for last. और better option मिलेगा क्या? Government should regulate financial markets and institutions closely. See, first thing is there is no talk about financial markets. ठीक है, financial markets का बात ही नहीं हो रहा है. बात हो क्या किसका रहा है? Monetary policy and fiscal policy. Financial markets क्या होता है? Financial markets होता है stock market. ठीक है, एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट. गवर्नमेंट रेगुलेशन का बात ही नहीं हो रही है. क्वेश्चन में हो रही है कि कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क एक्टिवली सपोर्ट द अनदर. भाई ये दोनों का इंडिपेंडेंटली काम करने का बात हो रही है. देन मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विथ सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. भाई सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट देर इज नो टॉक. वेदर गवर्नमेंट इज डूइंग कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, सोशलिस्ट पॉलिसीज, देर इज नो टॉक. ठीक है, देन फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स required for the enhancing of economic welfare of people. Financial sector भाई क्वेश्चन सेंट्रल थीम क्या है इनका? कोरोलरी इज मेड ऑन भाई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, टू एनहेंस वेलफेयर ऑफ पीपल, एंड वन विंग ऑफ सच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क. क्वेश्चन का मेन आर्ग्यूमेंट इज वन विंग कैनॉट वर्क, बोथ नीड्स टू वर्क टुगेदर. तो ये सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज द आंसर. ठीक है, सो इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल कोरोलरी ऑफ द अबोव पैसेज. देखो अगेन छोटा सा पैसेज है. ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. सो रीड द पैसेज. विथ डिजिटल फिनोमिना रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर्स, it is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital era in an attempt to preemptively colonize it. ठीक है, ट्रेड नेगोशिएशन से ट्राइंग टू colonize. बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड or mined from developing countries and converted into digital intelligence in developed countries. This intelligence began to control different sectors and extract monopoly rents. A large foreign company providing cab service, for instance, is not a network of cars and drivers. It is a digital intelligence about commuting, public transport, roads, traffic, city events, personal behavior, characteristics of commuters, drivers, and so on. The question is, with digital phenomena, most social sectors, global trade negotiations and
डेटा कोलोनाइजेशन, ठीक है, corporates monopoly etc. So corollary is globalization is not in the interest of India as it undermines its socio-economic structures. भाई ये बात ही नहीं कर रहा है ग्लोबलाइजेशन वेदर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और नॉट, ठीक है. देन इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सोवर्निटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स. अब देखो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस भी बात हो रही है, ठीक है. सो इंडिया डिजिटल सोवर्निटी ग्लोबल ट्रेड टॉक्स, सो देर इज एन एलिमेंट ऑफ पैसेज रिलेवेंट स्टफ, कोरोलरी बनने का वो है. दैट इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज. भाई क्या करना चाहिए इंडिया को, मोनोपोली रेंट्स देना चाहिए, टैक्सेस लेना चाहिए, इज नो वे डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ्स, ठीक है. लॉस ऑफ बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड, ठीक है. देखो फॉरेन ट्रेड पे कभी बात ही नहीं किया. फर्स्ट थिंग इज इन प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, इट इज नॉट टॉक्ड. इट इज जस्ट पैसेज इज लाइक ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहा है, डिजिटल फिनोमिना. लिटिल सरप्राइज दैट आर नाउ आइंग ऑन डिजिटल एरिया इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंशली कोलोनाइज इट. दिस इज अबाउट कोलोनाइज इट. देखो डिजिटल सोवर्निटी अगेन इधर आ गया, ठीक है. देखो कोलोनाइज इट एंड mined by developing countries and developed countries. So answer is India should be careful to protect its digital sovereignty because colonize हो रहा है in global trade talks, global trade negotiations में, क्योंकि भाई सब डेटा है तो डेवलपिंग कंट्रीज कर सकता है. सो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल कोरोलरी, ठीक है. कोरोलरी नेचुरल कंसिक्वेंस बाई इंडिया शुड focus on sovereignty, natural consequence of what is given in the passage, ठीक है. So next question, see next question is in from paper 2019 CSAT paper. So most logical and rational corollary from the above passage. देखो फिर small passage दिया हुआ है, ठीक है. So just read it corollary का. The rural poor across the world, including India, have contributed little to human-induced consume. भाई रूरल पूर है वो कम क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट किया. एट दे आर द ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ कोपिंग अप विथ इफेक्ट्स, बट गरीब है गरीब ही मरेंगे, ठीक है. फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन historical averages of rainfall and temperature, and more frequent and extreme weather events such as droughts can spell disaster. And there are new threats such as sea level rise, impact of glacier melting, water supply. How significant are small farms? As many as 2 billion people worldwide depend on them for their food and livelihood. Smallholder farmers in India produce 41% of country's food grains and other food items that contribute to local and national food security. ठीक है, नेशनल एंड लोकल फूड सिक्योरिटी. इट इज़ लाइक देखो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स, ठीक है. क्वेश्चन इज लाइक ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है एंड इट इज़ ऑन फार्मर्स रिलेटेड थिंग, ठीक है. सपोर्टिंग फार्मर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फार्मर्स, ड्रॉट्स, फ्लडिंग, ठीक है. स्मॉल फार्मर्स हो रहा है, स्मॉल फार्मर्स, तो लेट्स कुछ लॉजिक है इसमें. पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देखो फर्स्ट थिंग देर इज नो टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड मिटिगेशन एंड पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल, ये भी बात नहीं किया. इट इज लाइक रूरल पुअर कंट्रीब्यूटेड लेस बट दे आर गेटिंग इफेक्टेड मोर, ठीक है. एंड इट इज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर डिफरेंट. भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इज हीटिंग, ठीक है. क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल वार्मिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है. क्लाइमेट चेंज इज ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, उसमें ग्लोबल वार्मिंग इधर आता है, ठीक है. सो क्वेश्चन इज नॉट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल, ये बताया नहीं है, ठीक है. ड्यू टू नेक्स्ट इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड्स इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसीएबल फ्यूचर. देखो क्वेश्चन
हाउ सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल फार्म्स? As many as 2 million worldwide depend on them for food and livelihood. Smallholder farmers produce 41% food items that contribute to local and national food security. Again, due to large number of farmers, India will not have. By it is like contributing to food security. It does not mean India will not have food security problem. भाई फूड सिक्योरिटी के कंट्रीब्यूट कर रही है स्मॉल फार्मर्स. इट डजेंट मीन इंडिया विल नॉट हैव. इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ठीक है. ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी. नो भाई, दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. सी अगेन, इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डोंट मेक ए स्टेटमेंट ऑफ 10 into 100. जैसे क्या देगा, स्टेटमेंट देगा कि भाई संदीप इज गुड इन मैथ्स. ठीक है, इज गुड इन मैथ्स. इट डजेंट मीन कि, और स्टेटमेंट में देगा संदीप कैन सॉल्व एनी मैथ्स प्रॉब्लम. भाई गुड इन मैथ्स doesn't mean you can solve any maths problem. Like even CV Raman cannot solve any maths problem. ठीक है. सो ऐसा एक दे के उसको 1000 करने की कोशिश करना, उस पॉइंट को काट दो. ओनली स्मॉल फार्मर्स कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी, नो. ठीक है, विल नॉट, ये तो ये पॉइंट काटना है. सो देन बचा हुआ यही है. सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज स्मॉल फार्मर्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, प्रोड्यूस 41% करता है, तो दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है. देन नेक्स्ट इज सी, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2015 पेपर, लॉजिकल कोरोलरी. देखो स्मॉल पैसेज, इतना देखो स्मॉल पैसेज, यस, while attempting passages these have to be the first priority and you must attempt all these small passages. ठीक है. Okay. Flamingos in large flocks in the wild are social and extremely loyal. They perform group mating dances. Parents are very fond of their chicks, gathering them into creches for protection while both males and fly off to search for food. Flamingos के बारे में बात हो रही है. ठीक है. वाइल्ड फ्लोक्स सोशल एंड एक्सट्रीमली लॉयल है. ठीक है, एक्सट्रीमली लॉयल है फ्लेमिंगोस, अनलाइक वी ह्यूमंस हु आर नॉट लॉयल. ठीक है. सो लेट्स सी कोरोलरी क्या है. विच अमंग द फॉलोइंग आर मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी टू द अबोव पैसेज? मास नेस्टिंग इन ऑल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज एसेंशियल टू एंश्योर कंप्लीट सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग. देखो अगेन वेरी इजीली एलिमिनेट कर सकता है. देखो क्वेश्चन इज ऑन फ्लेमिंगोस, लार्ज फ्लोक, दे परफॉर्म ग्रुप मेटिंग डांसेस, पेरेंट्स आर फाउंड ऑफ देयर चिक्स एंड ऑल. सो ऑल बर्ड स्पीसीज कहाँ से आ गया? फ्लेमिंगोस आर जस्ट वन स्पीसीज. एक से अनेक इज ऑलवेज रॉन्ग. ठीक है. ओनली बर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप सोशल बिहेवियर. देखो अगेन ओनली बर्ड्स के बारे में बात कर रहा है. पैसेज इज जस्ट ऑन फ्लेमिंगोस एंड ओनली दे हैव कैपेसिटी टू डेवलप सोशल बिहेवियर एंड दस मास नेस्टिंग. देखो ओनली बर्ड्स हैव कैपेसिटी ऑफ सोशल बिहेवियर. भाई सोशल बिहेवियर तो ह्यूमंस में भी है. ठीक है, एंड अदर एनिमल्स में भी है. एंड पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, ओनली बर्ड्स, तो इजीली एलिमिनेटेबल ऑप्शन. Then social behavior in some species of birds increases the odds of survival in an unsafe world. देखो इधर social and loyal, they perform group mating dances. Parents are fond of their clients, gathering creches while males. ठीक है, ये protection, creches for protection, males grow for fighting. So ये है all species of birds set up creches. They chicks. देखो again it is only talking about flamingos. So all species of birds is like pigeons, parrots, etc. सब creatures का भाई mention ही नहीं है. So easily attemptable question, easily you can eliminate. ठीक है. So
एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 2015, तब थोड़ा ईजी आते थे क्वेश्चंस. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 2015 का. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी. कोरोलरी का क्वेश्चन. देन अगेन देखो, स्मॉल पैराग्राफ एंड जस्ट 4 ऑप्शंस. दीज आर फर्स्ट अटेम्प्ट करना है. क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी मेकिंग मेनी पीपल हंग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय डिसरप्टिंग crop yields and pushing up prices. And it is not just food but nutrients that are becoming scarier as the climate changes. By nutrients, it is poorest communities that suffer the worst effects of climate change, including increased hunger, malnutrition, as crop production and livelihood are threatened. On the other hand, poverty is driver of climate change as desperate. See, question is on climate change, hungry, ठीक है, एंड पॉवर्टी क्लाइमेट चेंज. ठीक है. सो गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड्स टू पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स. देखो, फर्स्ट थिंग, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम पे बात ही नहीं किया. ठीक है. एंड फंड एलोकेशन पे बात ही नहीं किया, सो काटना है. देन पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज रीएनफोर्सेस ईच अदर एंड देयरफॉर वी हैव टू री इमेजिन आवर फूड सिस्टम्स. इम्पैक्ट रीएनफोर्स ईच अदर. देखो, इधर सेम बात किया. ऑन द अदर हैंड पॉवर्टी इज ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज. इधर क्लाइमेट चेंज पॉवर्टी इंड्यूस कर रही है, एंड सो इट इज टॉक्ड अबाउट. सो लेट्स कीप इट. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट. भाई यूनाइट इन फाइटिंग पॉवर्टी एंड मॉल न्यूट्रिशन. भाई कहाँ बात किया? ऑल कंट्रीज नीड टू यूनाइट एंड ऑल. बकवास स्टेटमेंट. सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ पैसेज. We must stop unsustainable agriculture practices immediately and control food prices. भाई बात ही नहीं किया. इट्स लाइक है भाई, हंगर वगैरह है, माल न्यूट्रिशन है, क्रॉप यील्ड्स वगैरह हो रहा है. ठीक है. कंट्रोल फूड प्राइजेस पे भी बात नहीं किया. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. ठीक है. दिस इज क्लास 4. So we have exclusively discussed till now on assumption based questions. ठीक है. Then inference based questions, then imply based questions, then corollary based questions. These are the majority questions. इन्हीं चीज़ों से आता है एंड डिफिकल्ट भी यही चीज़ होता है. बाकी क्रक्स है, सेंट्रल थीम है, दीज आर इजी क्वेश्चंस इधर से. सो कंफ्यूजन वाले पार्ट से वी हैव डेल्ट. देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विथ बिग पैसेज क्वेश्चंस. ठीक है. बिग पैसेज, लाइक बिग पैसेज देगा और उसमें 2 to 3 क्वेश्चंस होगा. उनको हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू एड्रेस देम, हाउ टू रीड देम, हाउ टू गो about them, we will see in the next class. So that's it for today's video. Thank you very much for watching. Bye.